Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome you all at AppSec online support program. Chapter 16 hydrocarbon. The topic is benzene and substituted benzene. Chapter number 16. Today's topic is nomenclature of benzene. Before discussing the nomenclature, here we have a statistic on benzene. Benzene, first of all, discovered by our scientist Michael Faraday in 1825. Molecular formula C6H6, molecular mass 78.11. That is the most basic aromatic molecule. Bond length between carbon and carbon is 139 picometer and carbon and hydrogen is 109 picometer. It is a colorless liquid. Boiling point is 80.1 degrees centigrade. Melting point is 5.48. Density is 0.876. It is insoluble solvent. It is insoluble in water because it is actually the non-polar solvent. That's why it is insoluble in water but soluble in oil, fats and organic compound. And it containing the explosive vapors. Okay, ये हमारे पास statistic था benzene का. Now we will discuss the nomenclature. First of all, the monosubstituted benzene. For certain compounds, benzene is the parent name and the substituent is simply indicated by a prefix. For example, here the substituent is ethyl. So when the ethyl is attached with the benzene ring, the name of the compound will be ethyl benzene. Substituent, we will write the substituent as a prefix and the word benzene as a suffix. Here the substituent is chlorine, so the compound name will be chlorobenzene. Here the substituent is nitro group, so the compound name will be nitrobenzene. Bromo group is attached with the benzene, so the compound name will be bromobenzene. Here the butyl group is attached with the benzene ring and the butyl group is in the form of tertiary, so the complete name will be tertiary butyl benzene. For other compounds, the substituents and the benzene ring taken together may form a new parent name, which is also known as the common name. Okay students, when methyl group is attached with the benzene ring, the common name of the derivative will be toluene. If hydroxyl group is attached with the benzene ring, the compound name will be phenol. When nitro group is attached, the compound name will be aniline. If COOH, which is actually the carboxylic group, when it is attached with the benzene ring, the compound name will be benzoic acid. If methoxy group is attached with the benzene ring, the compound name will be anisole. If ethene is attached, the compound will be styrene. If aldehyde group, it is the aldehyde, okay? Oxygen is not written here. Aldehyde group is CHO. If CHO group is attached with the benzene ring, so the compound name will be benzaldehyde. And if COOH group is attached with the benzene ring, the compound name will be benzoic acid. And if cyanide group is attached with the benzene ring, the compound name will be benzonitrile. Now the topic is phenyl group. What is phenyl group? When a benzene ring is a substituent, the term phenyl is used for C6H5. Okay? And benzyl for the C6H5, and if CH2 group is attached with the benzene ring, so the compound name will be benzyl. Just look at here students. Here we have a parent chain और आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास अबाउट 7 कार्बन है लॉन्ग चेन के अंदर. जब 7 कार्बन हमारे पास लॉन्ग चेन में हैं तो हमारे पास जो बेंजीन जिसमें 6 कार्बन होते हैं वो यहाँ पे एज अ सब्स्टिट्यूएंट है. ओके तो जब बेंजीन जब भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज़ होगा तो उसके लिए फिर हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे फिनाइल का. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फिनाइल या बेंजीन ग्रुप जो है वो कौन से कार्बन पे अटैच है, दैट इज अटैच विद द सेकंड कार्बन. सो द कंप्लीट नेम ऑफ द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी 2-phenyl heptane. Now the heptane, these 7 carbons are actually the parent chain and phenyl is the substituent. Okay, that is the substituent. If CH2 group is attached with the benzene ring, the compound name will be benzyl group. Okay. Now relative position on the benzene ring. Here students, just observe this one. स्टूडेंट्स अगर हमारे पास कोई एक सब्स्टिट्यूएंट पहले से अटैच होगा, ठीक है, सो उस सब्स्टिट्यूएंट के साथ जो हमारे पास जो पहले से अटैच है उसके एडजेसेंट कार्बन जो होंगे, जो ये वाली जो पोजीशन होती है इसको हम कहते हैं ऑर्थो पोजीशन. ठीक है. सेकेंड हमारे पास होता है मेटा पोजीशन. मेटा पोजीशन क्या होती है? सेपरेटेड बाय द 1 कार्बन. अब आप देख सकते हैं अगर मैं आपसे मेटा पोजीशन कहूँगी
तो यहाँ पे हमारे पास है सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ हमारे पास है मेटा पोजीशन, और ये यहाँ पे एक कार्बन है जो कि जिसकी वजह से सब्स्टिट्यूएंट और मेटा पोजीशन के कार्बन एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। सो इस पोजीशन को हम कहते हैं दैट इज़ द मेटा पोजीशन। इस पोजीशन को हम कहते हैं ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। और हमारे पास अगर वो पोजीशन जिसमें हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो कार्बन वाली पोजीशन है उसको हम पैरा पोजीशन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ आपके पास नंबर से भी शो किया गया है कि ऑर्थो हमारे पास सेकंड पोजीशन होती है, ऑर्थो में हमारे पास सेकंड कार्बन होता है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें तो ये हमारे पास 1 है, तो ऑर्थो हमारे पास कौन सी पोजीशन पे होगा, सेकंड पे। मेटा हमारे पास थर्ड पोजीशन, एंड पैरा हमारे पास कौन सी पोजीशन आ जाएगी कार्बन की, फोर्थ पोजीशन, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, और जब हमारे पास मिथाइल ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच होता है उसको हम क्या कहते हैं, टॉलीन। अब हमने उसका ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाया इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो ब्रोमीन हमारे पास इस पोजीशन पे आ गया है। इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ द पैरा ब्रोमोटोलीन। सबसे पहले तो आपने किस तरह नाम लिखना है इसका, ये हमारे पास जो कंपाउंड है इसका नाम क्या है, टॉलीन है। अब इसके साथ ब्रोमीन अटैच है, और ब्रोमीन किस जगह पे अटैच है, पैरा पोजीशन पे। याद रखिएगा जो सब्स्टिट्यूएंट के बिल्कुल ऑपोजिट पोजीशन होती है उसको पैरा कहते हैं। तो ये पैरा पोजीशन पे है इसलिए इसका नाम हो गया पैरा ब्रोमोटोलीन। नाउ कम टू दिस वन, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है यहाँ पहले से क्लोरीन अटैच है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दैट इज़ द क्लोरोबेंजीन। अब हमारे पास यहाँ पर एक और क्लोरीन जो अटैच है वो सेकंड पोजीशन पे है। अगर पहले वाले को हम नंबर 1 दे देंगे तो सेकंड कार्बन विल बी सेकंड क्लोराइड विल बी द सेकंड पोजीशन। तो हम इसका नाम क्या कह सकते हैं, इसका नाम होगा ऑर्थो। अभी ऑर्थो पोजीशन पे है क्योंकि सेकंड कार्बन पे है, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, क्योंकि 2 कार्बन है हमारे पास। नाउ कम टू द दिस वन। अब ये हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप पहले से अटैच है, दूसरा मिथाइल ग्रुप हमारे पास थर्ड पोजीशन पे अटैच है, तो हम इसका नाम क्या बोलेंगे, दैट इज़ द मेटाजाइलिन, ठीक है। मेटाजाइलिन भी कह सकते हैं, और ये हमारे पास 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड है। नाउ कम टू द दिस वन, ये हमारे पास है बेंजीन के साथ अगर एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है उसको हम बेंजल्डिहाइड कहते हैं। बताया था अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में, बेंजीन के साथ अगर एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है उसको बेंजल्डिहाइड कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्लोरो ग्रुप अटैच है, और क्लोरो ग्रुप किस जगह पर अटैच है, एट फोर्थ कार्बन। यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, ये हमारे पास इसकी बिल्कुल ऑपोजिट पे है। तो जब हमारे पास ये सेपरेट होता है बाय 2 कार्बन तो हम उसको पैरा पोजीशन कहते हैं। सो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले बेंजल्डिहाइड तो इसका नाम है ही, उसके बाद इससे पहले हम प्रीफिक्स में लिखेंगे पैरा क्लोरो बेंजल्डिहाइड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास है कि हम इस तरह से पोजीशन के ज़रिए भी बेंजीन के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उसको शो कर सकते हैं। थोड़ी मज़ीद एग्जांपल है इसकी, आप देख सकते हैं। फर्स्ट वन का नाम क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे है तो उसका नाम हो जाएगा ऑर्थो डायब्रोमोबेंजीन, ठीक है। हमारे पास अब देख सकते हैं आप इसको कि हमारे पास पहले ब्रोमोबेंजीन है, सेकंड हमारे पास मेटा पोजीशन पे है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मेटा डायब्रोमोबेंजीन। यहाँ पे हमारे पास सेकंड ब्रोमीन की जगह पे पैरा पोजीशन पे है तो उसका नाम हो जाएगा पैरा डायब्रोमोबेंजीन। चाहे तो आप ऑर्थो, पैरा या मेटा से भी बता सकते हैं, और नहीं तो फिर आप पोजीशन लिख के भी बता सकते हैं, 1 2 डायब्रोमोबेंजीन, 1 3 डायब्रोमोबेंजीन, 1 4 डायब्रोमोबेंजीन, ठीक है। आप किसी तरह भी बता सकते हैं। ये एक और एग्जांपल है हमारे पास, ऑर्थो ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, मेटा फ्लोरो नाइट्रोबेंजीन, पैरा ब्रोमो टॉलीन, क्योंकि ये कंपाउंड हमारे पास टॉलीन है, ब्रोमीन अटैच हो गया तो हमने इसको बोल दिया पैरा ब्रोमो टॉलीन। एंड द लास्ट वन इज़ द फिनॉलिक ग्रुप है, ये हमारे पास पहले फिनॉलिक ग्रुप है, साथ नाइट्रो ग्रुप अटैच हो गया तो इसका नाम हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ओके, चूज नंबर टू गेट द लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यूज। यहाँ आपको कुछ मजीद एग्जाम्पल गिवन है कि हम इस तरह किस तरह से लिख सकते हैं, लिस्ट द सब्स्टिट्यूएंट्स अल्फाबेटिकली विद हाइफनेटेड नंबर्स, कॉमन नेम्स सच एज टॉलीन कैन सर्व एज रूट नेम। ओके, अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम लोग हमारे पास मोर देन 2 अगर हमारे पास या मोर देन 1 अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे तो हम उनका नाम किस तरह से करेंगे, आप नंबरिंग से करेंगे, ठीक है। अब आपने नंबरिंग इस तरह से करनी है कि आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लीस्ट नंबर मिले। हम लोग अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास 2 जो सब्स्टिट्यूएंट हैं उनको लीस्ट नंबर मिलेगा, 1 2 1 2 3 4। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप अल्फ़ाबेटिकली करेंगे तो पहले आपके पास ब्रोमो आएगा, 4 ब्रोमो 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन, ठीक है।
सेकंड का आप देख सकते हैं, अब आपने नंबरिंग इस तरह से शुरू की क्लॉकवाइज, ठीक है, क्योंकि आपने, ताकि आपके पास यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट हैं, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट, इनको लीस्ट नंबर मिले और इस नाइट्रो ग्रुप को भी लीस्ट नंबर मिले। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-chloro-1,4-डाइनाइट्रोबेंजीन। व्हाट अबाउट दिस वन, ये हमारे पास जो है टॉलीन है। अगर आप देखें ज़रा इसको तो ये टॉलीन है। अब नाइट्रो ग्रुप किस किस जगह पर है, सेकंड पे, फोर्थ पे एंड सिक्स पोजीशन पे। सेकंड पे, फोर्थ पे एंड सिक्स पोजीशन पे हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा 2,4,6-ट्राइनाइट्रोटॉलीन। इसका हो जाएगा 2,6-डाइब्रोमोफिनॉल। ये हमारे पास बेंजोइक एसिड है, क्योंकि बेंजीन के साथ COOH अटैच है, तो मेटा क्लोरो, क्योंकि हमारे पास जो क्लोरो है वो मेटा पोजीशन पे है, तो इसका नाम हो जाएगा मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। नाउ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, इट इज़ इमिसिबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्यों इमिसिबल है वाटर में, क्योंकि हमारे पास जो बेंजीन होते हैं, बेंजीन जो कंपाउंड है दैट इज एक्चुअली नॉन पोलर। जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर में डिजॉल्व होते हैं, लाइक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ठीक है। और वाटर जो है हमारे पास पोलर सॉल्वेंट है, यू नो वेरी वेल, लाइक डिजॉल्व लाइक। कलरलेस लिक्विड एंड हैज़ एन एरोमेटिक ऑर्डर, डेंसिटी 0.87, moderate boiling point 80 point something, high melting point 5.48. Benzene show the resonance, it undergo electrophilic substitution reaction and highly inflammables and burns with a sooty flame, क्योंकि हमारे पास मेनली एरोमेटिक कंपाउंड है और जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो बर्न्स होते हैं विद अ सूटी फ्लेम। ये आपके पास एक्टिविटी है स्टूडेंट, ये कंपाउंड्स आपको गिवन है, आपने इनके IUPAC नेम्स लिखने हैं और अगर कॉमन नेम्स हैं तो इनके कॉमन नेम्स लिखने हैं। ये नेम द फॉलोइंग, मज़ीद आपको इसको जितने भी कंपाउंड्स हैं इनके नाम लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे नेमिंग दिए हुए हैं और आपने इनके स्ट्रक्चर बनाने हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। फर्स्ट वन इज़ द 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफिनॉल। कैसे बनाएंगे आप, पहले बेंजीन रिंग बनाएंगे, फिनॉल की बात हो रही है तो यहाँ पे OH ग्रुप आ जाएगा, 2,4,6, 2 पे नाइट्रो आ जाएगा, NO2 ग्रुप, 4 पे आ जाएगा NO2 ग्रुप और उसके बाद आ जाएगा 6 पे NO2 ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।